A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BST teacher. Today we'll be doing the types of letters that you have to study for your exam of BST for 2023 examination. We'll only be taking the part that has already come in the previous year papers. This section has two parts. The first where we'll be discussing the previous year papers, and second what mistakes you should not repeat in the part of letter formatting. Okay, now these are the four kinds of analysis, pupils analysis that we will take. This is of those are 19, 18, 17 and 16. 20 का analysis was not available, so we have no idea of that. The first is 2019. This the question is you have to draft a letter of appointment for a school teacher offering him or her a job of history teacher in a secondary school. Okay, now we'll be taking the part of its solution firstly. Then we will study ki what things are there that you should not do as mistake. First, you will start with the name of your own address, means you are writing. Now we will study it again. The question says that you have to draft a letter of appointment for a school teacher offering him job of a हिस्ट्री टीचर इन अ सेकेंडरी स्कूल. तो आप वहां के सपोज करो कि यू आर द हेड ऑफ दैट प्लेस. तो व्हाट यू आर डूइंग हियर कि सबसे पहले आप लिखोगे उस पर्टिकुलर स्कूल का एड्रेस. इट विल बी सेंट्रली अलाइंड, बीच में उसको लिखा जाएगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में, याद रखना. देन यू विल मेंशन द डेट हियर. डेट की फॉर्मेटिंग इन जनरल टर्म्स में कैसी होती है? दैट इज लाइक सपोज करो टुडे इज 27, तो आई विल राइट हियर एज 27th. सिर्फ ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना कॉर्नर पे लिखना है 27th February. देन यू विल पुट अ कॉमा देयर एंड 2023. ठीक है, सिर्फ इतनी सी फॉर्मेटिंग यू विल टेक एंड यू विल पुट इट एट द साइड. उसके बाद इसमें लिखा हुआ यू विल मेंशन टू मिस्टर शिव रे. देन नेम ऑफ दैट पर्सन, एड्रेस ऑफ दैट पर्सन जिसको आप ये लेटर सेंड कर रहे हो, दैट इज रिसीवर्स एड्रेस. देन यू विल राइट द सब्जेक्ट, leaving one line in between. You will write the subject and then uske theek niche you will write reference. Then again you will leave one line and then you will write dear Mr. Ray या dear sir, dear ma'am, whosoever the person is. Now you will start it as with reference to your application and subsequent interview for the post of postgraduate teacher. क्या बोला गया था? सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट विल बी रिटन एज सेकेंडरी स्कूल है, तो इट विल बी रिटन एज पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन हिस्ट्री. We are happy to inform you that you have been selected for the appointment to the post. Your basic salary will be this much. ये तो बहुत कम है. In the scale of this मतलब वो इस according बढ़ेगी. Then HRA, DRA, CCA as per the rules of the school. ओके, वट एवर यू नो अबाउट इट आप सिर्फ उतना उसमें मेंशन करो. फिर इसमें लिखा हुआ है दैट योर अपॉइंटमेंट इज ऑन प्रोबेशन. यू हैव टू टेल ऑल्सो कि आप परमानेंटली एम्प्लॉय कर रहे हो किसी पर्सन को, और इट इज और ही हैज बीन एम्प्लॉयड ऑन probation period of 2 years and will be confirmed on satisfactory completion of the probation period. की जैसे कह लो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसको एज टेम्पररी रखते हो. टेम्पररी इन द सेंस यू कैन गिव देम द नोटिस एंड यू कैन टर्मिनेट दैट पर्सन. उसके बाद वो परमानेंट हो जाते हैं एक समय के बाद. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन योर अपॉइंटमेंट कैन बी टर्मिनेटेड by either of the parties by giving 1 month's notice. या तो आप छोड़ के चले जाओ या तो हम आपको बाहर कर सकते हैं by giving 1 month's notice. Then you have to tell कि letter of appointment है तो you have to report to the headmistress of the school, Mrs. Saxena. किस दिन? अब यहाँ पर यू कैन सी दैट कोई एक स्पेसिफिक डेट, तो आप एटलीस्ट 10 days का डिफरेंस रखोगे. आप जिस दिन डेट लिख रहे हो, लाइक 27 को अगर हमने लिखा हुआ है तो एटलीस्ट एक हफ्ते का बीच में डिफरेंस भी रखो. ऑन दिस डेट इन स्कूल ऑफिस ऑन दिस टाइम यू हैव टू साइन अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एज योर एक्सेप्टेंस. सेंड इट टू अस बिटवीन दिस. तो ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ जो टाइम है ये 7 days कर लो, यहाँ जो टाइम है अपने डेट से 10 days कर लो. 10 में पढ़ा होगा नोटिस राइटिंग में भी आप यही करते थे कि कम से कम 10 days का नोटिस राइटिंग का भी डिफरेंस रखते थे. देन
विद वार्म रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो. योर्स सिंसियरली यू विल राइट, फेथफुली यू विल नॉट राइट. ओके, एस डी मीन साइंड, आप नेम लिखोगे, आप अपना नेम लिखोगे, सेंडर्स नेम, द डेजिग्नेशन, सीसी, एनक्लोजर और डेट, वट एवर द डेट इज हेयर यू विल मेंशन. यही डेट यहाँ पर भी मेंशन होगी और यही डेट वहां पर भी मेंशन होगी. ठीक है, और यू कैन मेंशन इट आइदर ऑफ द प्लेसेस, ये हमने कहीं पढ़ा भी है इसी में ही, अभी वी विल स्टडी दैट पार्ट ऑल्सो. अब देखो, अब व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू कीप इट इन माइंड व्हेन यू विल राइट अ लेटर, अ काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर. फर्स्ट थिंग इज कि a large number of candidates did not attempt the letter, shifted the centrally aligned letter to the left hand side. मतलब जो चीज आपको बीच में लिखनी है वो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लिख दी है, तो इट शुड नॉट बी डन. wrote the letter of application, interview, offer instead of appointment, तो you need to write appointment पूछा है उसी का लेटर आप लिखो. you have to write important components of it, जैसे कि probation period, अगर आपसे बोला गया है कि आपको appointment letter आता है, probation period should be there, notice period should be there, emoluments कि आप ये बताओ कि उनको कितना पैसा मिलेगा, what is the reporting time, place, डेट, अथॉरिटी जिनको उनको रिपोर्ट करना है. देन सैल्यूटेशन शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड और माय डियर सर, इट शुड बी डियर सर और डियर मैडम. नेक्स्ट इज यू हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये नहीं होना चाहिए फेथफुली, ओबीडियंटली नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आइदर योर्स ट्रूली और सिंसियरली. ये अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा तो इसमें ये लिखा हुआ था कि योर्स फेथफुली हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन वी आर सेंडिंग लेटर टू समवन वी डोंट नो. बट इफ यू नो दैट पर्सन, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम से लेटर लिख रहे हो लाइक मिस्टर रे, तो यू विल मेंशन योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली. ओके, नाउ दिस इज डन, दिस इज ऑफ 2019. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, अच्छा एक और कुछ था इसमें, नो अभी अभी नेक्स्ट वाले में वी विल डू सब में एक ही जैसे 18. नाउ वी विल मूव, दिस इज एप्लीकेशन लेटर. ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एट अ reputed firm in response to a newspaper advertisement, and appropriate biodata of the applicant should be prepared and enclosed with the application. कि अब आपको क्या करना है, you have to draft an application जिसके साथ आप biodata should be prepared and enclosed with the application. So now we will move towards the part of this, we will take the letter part first. ठीक है, फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि what things are there that you should do and what things are there that you should not do. ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ये कैसे लिखा गया है. फ्रॉम जब पर्सन द सेंडर्स एड्रेस, डेट कैन बी आइदर एट द एंड, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑल्सो, मतलब आप ये जो डेट है या तो आप उसको यहाँ पर लिख लो या तो सबसे लास्ट में लिखोगे, इट विल बोथ द थिंग्स आर ओके. ठीक है, अच्छा दोनों जगह लिखनी है इसको, एंड और नहीं लगा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, तो इट हैज टू बी रिटन ऑन बोथ द साइड्स. बोथ द साइड्स इन द सेंस कि यहाँ पर भी लिखोगे, लास्ट में भी लिखोगे, आफ्टर सैल्यूटेशन पार्ट. नाउ डेट कैन बी एट द एंड, लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑल्सो, सबसे लास्ट में भी उसको लिख सकते हो कहा गया है. ठीक, तो सबसे पहले विल बी योर ओन, फ्रॉम whom इट इज, फ्रॉम दिस साइड. देन किसको आप भेज रहे हो, दिस इज रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो दिस लेटर, दिस इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन. किसको, जो पर्सनल मैनेजर है XYZ का, राइस नगर न्यू दिल्ली, या फिर ये भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो 4 लाइंस का, इट शुड बी टू द एडवर्टाइजर, उसका पोस्ट बॉक्स नंबर, टाइम्स ऑफ इंडिया. मतलब ये हो गया आपका पूरा न्यूज़पेपर वाला पार्ट, या फिर आप डायरेक्टली उस पर्सन को लिख सकते हो जहां से वो लेटर, जहां से वो एडवर्टीजमेंट आई है. देन सब्जेक्ट यू विल मेंशन, दिस इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट. देन रेफरेंस यू विल मेंशन कि कोई एक आप स्पेसिफिक नंबर मेंशन कर सकते हो, जैसे EMP एम्प्लॉयमेंट 1123/123, पता नहीं ऐसे करके कुछ ऊट पटांग सी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो. मींस यू कैन राइट दैट अगर रेफरेंस चीज पूछी गई है तो. फिर लिखा हुआ है, देन यू विल लीव 1 लाइन, देन डियर सर, रिस्पेक्टेड सर यू विल नॉट राइट,
This has reference to your advertisement for the post of assistant manager, sales as advertised in Times of India, और आप उसकी डेट मेंशन करोगे. अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप इस दिन पर लेटर लिख रहे हो तो टेक एटलीस्ट 2 days. मान लो 27 का है तो आप उसको 25 की डेट पर ये आया था, 26 की डेट पर आया था, ऐसे करके आप उसको एक दिन पहले का कर सकते हो. फिर आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेट पोस्ट, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा. इस एप्लीकेशन के साथ एक और बायोडेटा होगा. विद वार्म रिगार्ड्स, अगेन योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, यू विल नॉट यूज. देन साइंड, यू विल राइट द नेम, SD मीन्स साइंड. एनक्लोजर में क्या है, देयर इज बायोडेटा. Subject and reference can be after dear sir या before it, or it can be included in the body of the letter. क्या कहा गया है कि देखो इसमें सबसे पहली चीज कि ये जो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है या इसके बाद भी लिख सकते हो, लेकिन ट्राई टू राइट इट फर्स्ट, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है लेटर्स के पार्ट में. फिर इसमें क्या कहा गया है, नाउ कम्स द पार्ट ऑफ बायोडेटा. इट शुड बी इन ऑर्डर. सबसे पहले नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, एज, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मींस यू विल मेंशन ऑल दीज थिंग्स. अब यहाँ पर नेम और ये सारी चीजें, इसके जो आंसर्स हैं वो भी आप लिखोगे यहाँ पर. ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई. देन एग्जाम पास, को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें थी, एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, एंड देन रेफरेंसेस इफ यू नो सम पर्सन जो इसी कंपनी का या किसी और पर्टिकुलर कंपनी का है ऑफ द सेम पोस्ट, तो आप उसका नेम, देन लैंग्वेजेस दैट यू नो. तो दिस विल बी क्लोज हियर. आफ्टर दिस विल कम कि व्हाट थिंग्स आर देयर दैट यू शुड कीप इट इन माइंड व्हाइल राइटिंग दिस काइंड ऑफ लेटर. तो व्हाट हैज बीन सेड हियर कि अगेन अगर कोई चीज सेंट्रली अलाइंड है, इट हैज टू बी गॉन ऑन लेफ्ट साइड, जो नहीं होनी चाहिए. देन इंस्टेड ऑफ एनक्लोजिंग द बायोडेटा, कुछ लोगों ने उसको इनसाइड द एप्लीकेशन लिख दिया. मतलब कि अगर लास्ट में आप योर सिंसियरली लिख रहे हो तो उसके बाद अगर आपको बायोडेटा लिखना है तो वो पहले मत लिखो, बीच में मत लिख दो उसको कहीं भी. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड नॉट बी योर्स फेथफुली, इट शुड बी योर्स सिंसियरली. डिड नॉट राइट द सब्जेक्ट एंड रेफरेंस, यू नीड टू राइट द सब्जेक्ट की दिस इज लेटर ऑफ एप्लीकेशन, एंड उसका रेफरेंस कि इस दिन आपने जो एप्लीकेशन जो एडवर्टीजमेंट दिया था ये उसी का ही रेफरेंस है. रोट एन इनकरेक्ट सीक्वेंस इन बायोडेटा, रिमेंबर दिस, ये हम आपको भेज देंगे तो यू नीड टू रिमेंबर कि इन केस ये आ जाता है तो इसका ये जो ऑर्डर है ऑफ नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें इट शुड बी इन पर्टिकुलर ऑर्डर इटसेल्फ. लेटर ऑफ एप्लीकेशन हमने एक और कहीं करवाया, वो शायद CBSE का था. यू कैन गो एंड चेक इट इन दैट लेटर राइटिंग पार्ट. देन कुछ चीजें और इसमें बोली गई हैं. देन you are not supposed to write this respected or my dear, simply write dear sir or madam. Then no yours faithfully will be used, yours sincerely, yours truly will be used. ये हम उन स्पेसिफिक लेटर्स के लिए बता रहे हैं जिसमें ये चीज लिखी गई है. हो सकता है कि आपके कुछ कुछ लेटर्स, मतलब देखो इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ द बुक्स टू एक्सप्लेन यू कि हम बुक की एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग उठा करके दे दें. ये वही चीजें जो आपसे काउंसिल कहता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. इन केस अगर स्पेसिफिकली मेंशन होता उसमें कि इन लेटर्स में सिंसियरली, इन लेटर्स में फेथफुली होना चाहिए, तो फिर आई शुड हैव टोल्ड. नहीं लिखा है तो जिसमें लिखा हुआ है सिंसियरली फेथफुली उसमें उसी के अकॉर्डिंग ही यूज करो. एक्सप्लेन क्लियरली कि दैट एनक्लोजिंग biodata means providing a covering letter for the biodata, not including it in the application letter, कि आप उसको application letter में include नहीं कर रहे हो, वो अलग से जाएगा. ठीक, 19 डन, 18 डन. देन after that we will move towards 17. 17 says that दिस इज अ लेटर ऑफ कंप्लेन. देखो सब अलग अलग आए हैं तो अब ट्राई करना. 2022 का तो पेपर आई डोंट नो कि क्या आया होगा उसमें, मतलब आई हैड नॉट बीन देयर फॉर BST एट दैट टाइम, ओनली फॉर इंग्लिश. तो एप्लीकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द लेटर ऑफ कंप्लेन.
This is for XYZ Furniture Limited that has delivered some chairs in broken condition, and you have to ask them for the replacement of those broken chairs. So now we will move towards the formatting of it. The very first thing is this will be centrally aligned. जिसको आप लिख रहे हो ये मेरा एड्रेस हो गया, ठीक है, माय ओन एड्रेस. उसके बाद ये मेरी ईमेल आईडी. डेट इट हैज बीन मेंशन्ड हियर, ये मैंने बुक में भी देखा था, ये इसी साइड पर ही मेंशन्ड है, तो उसको उसी तरफ ही करके लिखो, ठीक है. देन टेलीफैक्स, देन फैक्स, ये पता नहीं क्या है, टेलीफोन है क्या है ये. देन फैक्स नंबर, इफ इट इज देयर यू हैव टू मैंडेटरली मेंशन इट, ठीक है. देन टू सेल्स मैनेजर, किसको आप एड्रेस कर रहे हो ये यहाँ पर ये लिखोगे. सब्जेक्ट यू विल राइट एंड मेंशन इफ, अगर आप इसको मेंशन करते हो देन ऑल्सो इट्स ओके. अगर इसकी जगह पर आप सिंपली 27 फरवरी पूरा लिखना और 2023 लिखते हो देन ऑल्सो इट्स ओके. लेटर की फॉर्मेटिंग में वैसे ऐसे ही लिखा जाता है, डेट का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है. फिर सब्जेक्ट का नाम आप लिखते हो, ये हिस्सा मेंशन करोगे. डियर सर यू विल मेंशन. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू, प्लीज रेफर टू आवर ऑर्डर ऑफ 100 चेयर्स, जिसकी लेबलिंग थी JP4 विद यू, दैट वी हैड ऑर्डर्ड सम नंबर्स. आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो विद ऑर्डर आईडी, लेबल्ड या ऑर्डर आईडी आप उसमें मेंशन कर सकते हो. 4-5 नेम ले लेना, 2-4 अल्फाबेट्स ले लेना, बना लेना. We received the parcel on particular date through Agarwal Transporters. एक झूठ झपेट ट्रांसपोर्टर का नेम उसमें मेंशन कर दो. However, on opening the packets, तब हमें पता चला कि जितनी 100 में से 16 chairs ही they were broken. We had to supply those chairs to our customer. हमको उसको अपने customers को देना था. And we were not able to proceed it further. Kindly send us replacement for the defective chairs immediately so as to reach us latest by 10 September, कि कम से कम वो हमें 10 सितंबर को तक मिल जाए. देखो 1 सितंबर को हम लोग ने अपना पार्सल रिसीव किया और यहाँ पर आप फिर भी उनको 10 डेज का डिफरेंस दे रहे हो. मान लो आपने सेम डे पर ही लेटर लिखा हो या अगले दिन लिखा हो, तो आप उनको एटलीस्ट 10 डेज का टाइम दे रहे हो. वी एश्योर यू of our continued patronage, ये वाली लाइन इसमें से कॉपी कर सकते हो. Then it is written on the right side, yours sincerely, signed, named and designation, whosoever person you are. ठीक है. अब we will move towards the part of its marking schemes की how it has been done. Now number of candidates, letter head जो था it looked more of a personal नेचर. इसके अलावा इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है. क्या लिखा गया है? एक्सप्लेन द फॉर्मेटिंग. रिस्पेक्टेड शुड नॉट बी यूज, सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड. माय डियर शुड नॉट बी यूज, सिर्फ डियर सर और मैडम शुड बी यूज. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज्ड कैन नॉट बी योर्स फेथफुली, इट शुड बी सिंसियरली या फिर ट्रूली. 10 बार ये चीज बताएंगे सो दैट यू यहाँ पर बैठ जाए वो एग्जाम देने से पहले. इन द कंप्लेन लेटर, अब ये देखो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कंप्लेन लेटर के लिए है. डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर विद ऑर्डर नंबर और डिटेल्स ऑफ ऑर्डर, की क्या आपने ऑर्डर किया था प्लस ऑर्डर नंबर, उसमें कुछ भी मेंशन कर दो ओब्लिक लगा करके. अरे अपना क्लास 10 का इंडेक्स नंबर ही उसमें मेंशन कर देना, दैट विल ऑल्सो वर्क. देन डेट ऑफ डिलीवरी यू कैन मेंशन कि किस दिन डिलीवर हुआ था, कितने यूनिट्स डैमेज या ब्रोकन है. लास्ट में यू आर आस्किंग फॉर अ रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज यूनिट्स एंड डू इट बाय अ पर्टिकुलर डेट. एक उनको पर्टिकुलर डेट दे दो कि हमको ये चीज का काम था, हमको इस दिन तक दे दो सो दैट वी कैन मूव फर्दर विद इट. ठीक है. दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्लेन लेटर. अब कंप्लेन लेटर हो गया है. रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर पढ़ लेना. Then the last one, 2016 ही I have got. 2016 is again the part of appointment for school teacher, offering her job of an English teacher in a secondary school. तो appointment वाला आप देख रहे हो कि 2 बार ये चीज आई हुई है. We will move towards here, towards the formatting. Now you will write it as school. ठीक है. अब date पहले उस तरफ थी, अब इस तरफ है, तो mention it this side only, क्योंकि हो सकता है कि पहले की फॉर्मेटिंग्स में डेट थोड़ी सी
शिफ्टेड हो या ओल्ड फॉर्मेट हो तो डोंट राइट इट देयर. आपने न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखा था कि डेट को यहीं पर ही मेंशन किया गया है तो यहीं पर ही मेंशन करो. देन टू, द पर्सन यू आर सेइंग दिस, उसके बाद दिस रेफरेंस, और ये इसको भी एकदम यहीं पर ही साइड में करो. ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहली फॉर्मेटिंग थी उसमें हमने यही देखा था. रेफरेंस नंबर, आपको एम्प्लॉयमेंट का नंबर यहाँ पर डालना है कि किस दिन एडवर्टीजमेंट हुआ था. एंड यू हैव टू राइट द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. इतना समझो दैट यू आर द हेड और सम अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल. ये हमने डाला यहाँ पर स्कूल का नेम इन 3 लाइन्स 4 लाइन्स. यू कैन मेंशन इट, किस पर्सन को भेज रहे हो, वो कहाँ रहता है. Then comes a part of salutation. Dear you will use, you will not use respected. Then this is with reference to your application. Subsequent interview for the post of an English teacher in secondary school. We are pleased to inform you. Okay, अच्छी अच्छी लाइन सब लिख लेना इसमें. That your appointment, ये यहाँ पर inform you about for appointment your basic salary will be this much, that has not been mentioned. या कुछ यहाँ पर printing error हुआ है. ठीक है, फिर कुछ printing error हुआ है यहाँ पर. अब I don't know, this is a complete PDF. I will send you this on Telegram. Your appointment is on probation for 1 year and will be confirmed on satisfactory completion of the probation period. The appointment is terminable by 1 month's notice from either side during the probation period. कि अगर आप probation period में हो तो either you can leave or they will remove you. Anything can be done during this probation period. Then please sign a copy of the letter of appointment as your acceptance and send it to us latest by इस दिन. ये अगेन 10 दिन का डिफरेंस लेकर के चलो. यू शुड रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस मिसेस नीता तिवारी on this particular date on this time. ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम किससे मिलना है, कब मिलना है, ये आप उनको बताओगे. with warm regards, leave 1 line, yours sincerely, leave 1 line and then sign, and Reena Mishra, the chairman. then it is closed. ठीक है, फिर we will move towards the part of what things you need to keep it in mind. Again a few things have been repeated. सबसे पहली चीज क्या बोली गई है कि in some cases salutation was written as dear sir. Since it is specific appointment, a specific name should be mentioned. आप एक चीज याद रखना, अगर आप किसी पर्सन को लिख रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंटमेंट लिख रहे हो, आप उनका नेम मेंशन करो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, whosoever the person is. In few cases, complimentary was again faithfully, that was not supposed to be written. At times, the letter was centrally aligned, but complimentary clause was left aligned. In general, answers should show the lack of practice on the part of candidates. Then we will move towards the part of some thing, that is all letters with their format and requisite should be explained clearly. ओके, तो ये हो गया मेरा 16 वाला पार्ट. इतने ही, these 4 were only there that I had. नाउ अब जो बचा उचा है, इंटरव्यू हो गया, रिप्लाई हो गया, ऑर्डर एंड इंक्वायरी हो गया, तो दैट यू कैन डू. CBSE के लिए I have already done this part. You can see that in the part of इंग्लिश में यही चीज दी हुई है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करते हैं. बाकी फॉर्मेटिंग इज गिवन इन योर बुक. आई फाउंड इट. आई कैन नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर बिजनेस स्टडीज, बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हमने आपको बताई है उसको ध्यान में रखना कि कुछ चीजों का जो एड्रेस होता है वो यही बीच में ऊपर ही ऊपर मेंशन कर दिया जाता है. और उसके बाद जैसे कोई मतलब किसी का, जैसे ये वाला कौन सा हम लोग ने पढ़ा था अभी, ये हो गया अपॉइंटमेंट वाला हो गया. और इसके अलावा लेटर ऑफ इंक्वायरी था कि क्या था, कंप्लेन. तो कंप्लेन में भी यू विल मेंशन इट हियर ओनली, बाकी सारी चीजें विल बी लेफ्ट अलाइन. ये वाला तो सिस्टम करना भी मत, पता नहीं ये ओल्ड फॉर्मेट है. यू कैन सी दैट फॉर्मेट ऑफ 18 और 19, उसको कंपेरेटिवली ज्यादा फॉलो करना. आई एम सेंडिंग यू ऑल दीज 4 पार्ट्स इन ऑन टेलीग्राम. check कर लेना. is there any issue, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exam. Best wishes. Thank you.